Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. Thank you, Mr. President. Fact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. Thank you, Mr. President. By the military, with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime, has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary. UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में धुआंधार तकरीरें हुई हैं और वो स्पीचेस खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एक फेस ऑफ हुआ है, हम वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने कैसे जवाब क्या दिया, बल्कि उन्होंने ही स्पीच की पहले। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बात की गई यूनाइटेड नेशंस में, वो हमने आपको बताई है, लेकिन उसी के साथ इंडिया की तरफ से जवाब आया है। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेट वो के हमने आपको पहले ही बताया था कि शहबाज शरीफ बात करेंगे, लेकिन उनका जवाब मोदी साहब की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब वहां पर यूएन जनरल असेंबली में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में, उन्होंने यूएन असेंबली में भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है
जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वहां पर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको शहबाज शरीफ पीएम की जो दिखाई थी, सुनवाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इंडिया ने जो बात की है वो भी आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि ये मामला जो है क्लियर हो जाए। लेकिन देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था, पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ना, अगर वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो से है वो रहे और उसके ऊपर लोग तवज्जो दें, तो ऐसा किया करें कि पहले इंडिया को बोलने दिया करें। इंडिया जो बात करता है उसके बाद उसके जवाब में जो है वो कहा करें। तो फिर शायद ऐसा हो कि आपकी बात में जो है वो ज़्यादा वज़न हो या बढ़ जाए बात। इसकी वजह ये है कि इंडिया जो जवाब में कहता है ना, तो वो फिर अगले पिछले सारे बदले निकाल लेता है। मतलब वो नानी याद करवाना जो कहते हैं ना, उस किस्म की सिचुएशन हो जाती है। जब इंडिया की तरफ से यूएन में जो है वो जवाब दिया जाता है। अब जो जवाब दिया है, क्योंकि देखें, उन्होंने जवाब सिर्फ इतना ही नहीं दिया कि अ, जैसे कि कोई बात हो और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो उसका जवाब दे दें अपनी किसी स्पीच में, या वो अपनी किसी उनसे कोई सवाल किया जाए और वो उसके जवाब में उसका जर्नलिस्टों को उसका जवाब दे दें, छोटा थोड़ा बहुत जवाब दे दें। ऐसा नहीं होता यूएन में। उनके जो वहाँ पर लोग हैं ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ठोक बजा के जवाब देते हैं, और वो जिस तरह की उनकी देखें ना, वो जहाँ से पढ़ते हैं, उनका जो एक नैरेटिव है, यानी उन्होंने जैसे बनाया होता है, जैसे प्लान करते हैं वो, और उनका जो स्टाइल है, उनकी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, वो फिर उसको पूरे तरीके से ना वो, बस आप खुद ही सुन लें उन्होंने जो जवाब दिया। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है इस वक्त यूएन में गया हुआ है, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं? वो क्या बातें कर रहा है वहाँ उस डेलीगेशन में कि भारत जो है वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलके, ठीक है जी, अ, वो जिसे कहेंगे ना, एक नया ग्रुपिंग उन्होंने बना दी और सीधा उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया वहाँ पे। और पाकिस्तान जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सुनने में यही आ रहा है और बाकी मिनिस्टर्स के बारे में सुनने में यही आ रहा है, सेल्फियों पे ज़्यादा फ़ोकस है और सब्सटेंस पे कम फ़ोकस है। और या फिर ये है कि हमारा ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम आईएमएफ के आगे जाके बैठ जाते हैं। अब देखिए ना जी, देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने की है, ठीक है जी। एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई है जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उनकी तरफ से। और वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है ब्राज़ील, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, साउथ अफ्रीका